کرنے والا قرآن دے رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہو، لیل و نہار دیکھ رہے ہو، شمس و قمر دیکھ رہے ہو، برگ و شجر دیکھ رہے ہو، کہاں پہاڑوں کے آبشار دیکھ رہے ہو، وہاں جھرنوں کو دیکھ رہے ہو، دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ رہے ہو، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہو، دنیا کے خوبصورت لوگوں کو دیکھ رہے ہو، حضرت آدم کی شجاعت دیکھ رہے ہو، حضرت نوح کی طاقت دیکھ رہے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت و شجاعت دیکھ رہے ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہاں اترنے والی آسمانی کتابوں کو دیکھ رہے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ رہے ہو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھ رہے ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ہاں اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی سارے سامان کم ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ قلیل نہیں دیا ہے، ارے خدا نے کثیر نہیں بلکہ کوثر دیا ہے۔ اما یار خدا کے قلیل کو اگر کوئی گنتی کرنا چاہے تو اس کو موت تو آ سکتی ہے، لیکن قلیل کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو قلیل کا جب یہ عالم ہے تو کثیر کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت علامہ شہباز نورانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہم نے آپ کو کثیر دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو اکثر دیا۔ اگر قلیل کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ بولو سوئٹزرلینڈ کی برفیلی وادی کو شمار کر پاؤ گے، بولو سنگاپور کی خوبصورت وادیوں کو شمار کر پاؤ گے، بولو دنیا میں دکھے جانے والی کشمیر جیسے خوبصورت وادی کو شمار کرنے پاؤ گے؟ نہیں نہیں صاحب، دنیا کی کائنات کی ان قلیل کو ہم شمار نہیں کرتے، اور اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کثیر نہیں اکثر نہیں کوثر دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے قبضے میں کر دیا ہے۔ ابو نعیم نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں لما خرجت من بطنی فاذا انا به ساجدا ثم رأيت سحابة بيضاء فاذا انا ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غشيته فاخشب عني ثم تلغت فاذا انا به مدرة في ثوب الصبح وتحته حريرة خضراء يوحاها۔ حضرت ابو نعیم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بیٹا میرے شکم سے باہر نکلا تو میں نے اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں پایا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو سجدے میں دیکھا فوراً کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے نیچے زمین پر آتا ہے اور میرے بیٹے کو اچک کر کے لے کے چلا جاتا ہے، اور بھی کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے میں اندھیرا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد میرے بیٹے کو لایا گیا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا بچے کو غائب کر دیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد لایا گیا، اور جب میرے بیٹے کو لایا گیا تو میرا بیٹا سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور ان کے نیچے ریشمی ہرے رنگ کا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں، اوپر کپڑا ہے سفید اور نیچے ہرا رنگ کا کپڑا ہے۔ اے لوگوں، سفید کا کنیکشن ہرے سے کتنا خوبصورت ہے۔ تم بھی کبھی کبھی سفید پہنتے ہو اور پھر اس کے بیچ میں نیچے سے ہرے رنگ کا جھنڈا آپ دیکھتے ہو، کیسا لگتا ہوگا، چگمگ چگمگ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر کوئی کہنے والا پھر میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہاں دو ریشمی ہرے رنگ کا کپڑا ہے اور اس میں دونوں چابیاں لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہنے والا تین چابیاں ہیں، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ قد قبض محمد علی کلید العصمت کلید النصرت وکلید النبوہ۔ کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا کہ تحقیق محمد کو اللہ نے نصرت کی کنجی پر قبضہ عطا فرما دیا، نبوت کی کنجی پر قبضہ عطا فرما دیا، اور یہاں تک کہ دنیا کے تمام بادشاہت کی
कुंजी मेरे नबी के कब्जे में कर दिया। हजरात गिरामी, फिर हजरत आमिना फरमाती है सुम्मा नज़लत सहाबतुल हुआ, फिर यहाँ तक के दूसरे बादल का टुकड़ा नाजिल हुआ और जब मेरे बेटे को फिर से गायब कर दिया, फिर दोबारा से मेरा बेटा जब नाजिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे बेटे के हाथ में हरे रंग का कपड़ा है और कोई कहने वाला कह रहा है कद कबज़ा मुहम्मद अला दुन्या व कुल्लिहा, कहने वाला कह रहा था कि मोहम्मद को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में कर दिया हो। दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जिस पर नबी का कब्जा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यहाँ से क्या पता चला, हमारे दिल पर भी हुकूमत नबी की है, हमारे जहन पर भी हुकूमत नबी की है, हमारे घर में भी हुकूमत नबी की है और हम अपने घरों में बरके और बिजलियां और झंडे लगा करके बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सर पर एक हुकूमत नहीं, इस घर पर भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। इस घर में तराने गाए जाएंगे तो मुस्तफा के गाए जाएंगे, नात पढ़ी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की पढ़ी जाएगी, हाँ हाँ साहब कसीदे पढ़े जाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत के पढ़े जाएंगे। हजरात इतनी सारी खूबियों का मालिक मेरा नबी है। अब सुनिए अल्लाह फरमाता है अल्लाह की नियामत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नियामत को गिनती करना चाहो तो नहीं गिनती करते। हजरात क्यों मैं बोला, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू खैरुन हुआ मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, वो लोग ऐ मेरे नबी लोगों में ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह का फजल पाकर और उसकी रहमत पाकर के खुशियां मनाओ, उसकी रहमत पाकर के खुशी, उसका खैर उसकी नियामत पाकर के खुशी, अल्लाह की नियामत पाकर खुशी का खुशियां मनाओ, अल्लाह की मेहरबानियां पाकर के खुशी मनाओ। हजरात हम गौर करेंगे हमारे जिस्म के अंदर सारी चीजें ही अल्लाह की नियामत है। आंख है तो अल्लाह की नियामत है, जबान है तो अल्लाह की नियामत है, कान है तो अल्लाह की नियामत है, बोलने के लिए होंठ है, जबान है तो अल्लाह की नियामत है, पैर सलामत है तो अल्लाह की नियामत है, हाथ सलामत है तो अल्लाह की नियामत है, मेरे घर में मेरी बेटी है तो अल्लाह की नियामत और रहमत है, मेरा बेटा है तो अल्लाह की रहमत है, नियामत है। हजरात दुनिया की सारी चीजों पर गौर करें तो सारी चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। पानी है तो अल्लाह की नियामत है, बारिश है तो अल्लाह की नियामत है, रिस्क है तो अल्लाह की नियामत है, खाना खा रहे हैं अल्लाह की नियामत है, सांस ले रहे हैं अल्लाह की नियामत है। ये अल्लाह की मेहरबानी से हम घर में सो रहे हैं, हमारे घर के ऊपर सामियाना है, हमारे घर के ऊपर छत है, ये सारी चीजें अल्लाह की फضل है कि नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है कि नहीं है, अल्लाह की नियामत है कि नहीं है। हजरात अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया वो भी नियामत है, हजरत शीश को पैदा किया वो भी नियामत है, हजरत इब्राहिम को पैदा किया वो भी नियामत है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया वो भी नियामत है, हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह को पैदा किया वो भी नियामत और रहमत है। हजरात किरामी सारी कायनात की चीजों को पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मोमिनों के ऊपर एहसान किया तो जो हमने इब्राहिम को पैदा किया, मोमिनों पर एहसान किया कि हजरत आदम को पैदा किया, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि हजरत खलील को पैदा किया, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि हजरत शीश को पैदा किया, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि आदम सानी हजरत नूह को पैदा किया। अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन कसम वहदहू ला शरीक, ना आंख देने के बाद, ना कान देने के बाद, ना औलाद देने के बाद, ना जमीन देने के बाद, ना समा देने के बाद, ना कायनात से कोई चीज देने के बाद अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन जब जताया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने जब जताया तो बारी आई आमिना के लाल के, बारी आई आकाए बिलाल के, बारी आई गुलशन नबुवत के महकते हुए फूल के, बारी आई जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों को पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस किया, आमिना को लाल को भेजा, तो एहसान जता रहा है। इससे क्या पता चला अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये था कि दिल पा करके अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें। यकीनन लाजिम है खाना खा करके अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें, पानी पी करके अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें। ये हक भी है और अदा करते भी हैं। दुआ पढ़ते हो कि नहीं? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामाना पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हज़रात गिरामी, आप नापाकी से पाक होते हुए आप दुआ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप अपने ज़रूरियात से फारिग होते हो दुआ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हज़रात आईना देखते हो दुआ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मस्जिद में दाखिल होते हो दुआ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। हम सारे काम करते जाएं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते जाएं, उसकी रहमत का शुक्रिया, उसकी नेमत का शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते चले 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 जाएं, लेकिन अल्लाह ने कभी हमसे डिमांड नहीं किया, कभी मुतालबा नहीं किया कि तुमको खाना खाओ तो हाँ, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरी नेमतें पा करके अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो नेमत में कमी नहीं होगी, नेमत में इजाफा होता चला जाएगा। नेमत पाकर कभी घमंड मत करना, नेमत पाकर कभी गुरूर मत करना, दौलत पाकर कभी घमंड मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला किसी खादपति को अरबपति बना देता है और कभी कभी अरबपतियों को खादपति बना देता है। हाँ, खादपति बनने में टाइम नहीं लगा। जो गुरूर होगा, जो गुरूर का पुतला बनेगा, जो घमंड का पुतला बनेगा, जो घमंड में चकनाचूर रहेगा, उलमा से मुंह बिसोर के भागेगा, मस्जिद से दूर भागेगा, मदरसे से दूर भागेगा, खानकाहों से दूर भागेगा, तलबा अहले सुन्नत से दूर भागेगा, उस मखलूक को मिसमार कर दिया जाएगा। लेकिन दौलत आने के बाद जो दौलत बढ़ती जाए, वो नमाज के करीब आता जाए, रोजे के करीब आता जाए, सजदे के करीब आता जाए, मस्जिद के करीब आता जाए, मदरसे के करीब आता जाए, दौलत बढ़ रही है, जलसे के करीब हो गया आदमी, दौलत बढ़ रही है, जुलूस के करीब हो गया आदमी, दौलत बढ़ रही है, नबी के नाम का लीला सजा रहा है, दौलत बढ़ रही है, लोगों को खाना खिला रहा है, दौलत बढ़ रही है, लंगरे गौसे आदम का एहतमाम कर रहा है, दौलत बढ़ गई है, उनसे गरीब नवाज का एहतमाम कर रहा है, दौलत बढ़ती जा रही है, उनसे आला हजरत का एहतमाम करता है, दौलत बढ़ती जा रही है, उनसे अशरफुल फुक़हा मनाता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब दौलत बढ़ रही है, मस्जिद से करीब, खानका से करीब, वस्ता से करीब, मौलाना से करीब अगर वो हो गया, समझो कि दौलत वो रहमत है, रहमत उसके लिए बाइस बरकत है। अल्लाह जरूर उसके नेमत में इजाफा फरमाएगा, उसकी दौलत में इजाफा फरमाएगा। लेकिन दौलत पा करके घमंड करोगे तो चंद दिन की दुनिया है साहब, ये दौलत खत्म होती चली जाएगी। हमारे मस्जिद के करीब में एक पानी का टैंकर रहने वाला आदमी था, नमाज से दूर, रोजा से दूर। एक दिन इत्तेफाक से रमजान में हमारे मौजिन ने उससे पानी मंगवा लिया, वो आया, उसका ड्राइवर पानी देने के लिए आया, आने के बाद पानी की टंकी फुल हो गई, अभी पानी और बचा हुआ था टाकी में। मौजिन साहब ने कहा रोक दीजिए और ये पानी वजू हो जाएगा तो टंकी खाली हो जाएगी तो ये दोबारा पानी डाल के चले जाना। उसने कहा नहीं मौलाना साहब, ये पानी आप अभी ले लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे इफ्तारी करने के वक्त पर। हजरात इतना खसीला आदमी, उसने अपने मालिक को बनाया और मालिक दूसरी कौम का नहीं था, हमारी तुम्हारी कौम का मालिक था। वो आया गुरूर में कहता है मौलाना पानी लेते हो कि नहीं लेते हो? हमारे मौजिन ने कहा जगह नहीं है, अभी पानी बचा हुआ है, उसे खाली होने दीजिए तो ये पानी ले लिया जाएगा। वो इतना खसीला, इतना घमंडी आदमी साहब, उसने कहा यहीं पर पानी चालू कर दूंगा, नालियों में तुम्हारा पानी बहा दूंगा, पैसा ले करके जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। इतना घमंडी, रमजान का महीना है साहब और पानी देने के लिए आया है, उसको तो होना ये चाहिए था मौलवी साहब रमजान का महीना है, पानी का भी पैसा नहीं लगेगा, ये गाड़ी अभी तक नहीं, जब तक चाहो आप उस वक्त तक खड़ा रखो, मैं पानी का ना पैसा लेता ना उजरत लेता। लेकिन आप देखेंगे उसने घमंड में क्या क्या बोला यही मौलाना की वजह से हम पानी नहीं भेजा करते हैं मस्जिद मदरसे से, इसलिए हमारा ताल्लुक नहीं है। बोलिए वक्त मांगा जा रहा है, वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। हजरात गिरामी, हमारे मौजिन ने कहा पानी जाए मत करो, पानी वापस लेकर के चले जाओ, भले से किसी का काम आ जाए, मौलाना जो होगा वो दयालु होगा। मैं भी बताऊंगा, मेरी बात आ रही है, मैं कहूंगा कि जो इस्लाम वाला होगा यकीनन रहम दिल वाला होगा।
होगा। हजरात जब वो मरने लगा ना, चंद दिन ही के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, पैर ने काम करना बंद कर दिया, पूरी जमीन भी गई, पूरा घर भी गया, उसके बीवी बाल बच्चे उसके लिए मरने के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। आप कहिएगा ये क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं साहब, मेरे सीने में दर्द है। हमारे कौम के हर शख्स को रहम दिल होना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने रहमत आलम बना करके भेजा था और तमाम मोमिनों को एक दूसरे का भाई बनाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है पड़ोसियों को तकलीफ में देख करके खुशी मत मनाओ, बल्कि उसके गम में सहारा बन जाओ, उसके लिए ठिकाना बन जाओ, उसके लिए माँ और मलजा बन जाओ। यही मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही अमन आस्ती का पैगाम है। इसीलिए जब अल्लाह दौलत है तो मस्जिद के करीब हो जाना, घमंड मत करना। देखा आपने क्या बुरा हाल हो गया, चंद ही दिनों में बीमारी ने पकड़ लिया। इसलिए अपने जिस्म पर भी कभी घमंड नहीं, कब किसका पैर काम करना बंद कर दे, कब किसका हाथ काम करना बंद कर दे। आजकल बड़ी तेजी के साथ बीमारी फैल रही है, लेकिन हज़ार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने दिल दिया ये नियामत है कि नहीं है? अल्लाह ने दिमाग दिया ये अल्लाह की नियामत है कि नहीं है? अल्लाह ने हाथ पैर सलामत रखे ये अल्लाह की नियामत है कि नहीं है? ये इतनी बड़ी नियामत है, अगर हम सर को हमेशा सजदे में रखें तब भी इस नियामत का हक अदा नहीं हो सकता। और उस पर फजल ये कि अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम वाला बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने हम कहाँ ताली पीट रहे होते, न जाने कहाँ हम थाली बजा रहे होते, न जाने कहाँ हम डीजे के घर से थिरक रहे होते, न जाने कहाँ हम जो वो चैरिटी शो करके डांस कर रहे होते। हमारी पेशानी न जाने कहाँ कहाँ गंदी हो जाती। अल्लाह ने नबी को पैदा फरमा करके चेहरे की तकद्दुस का हिफाजत कर लिया। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को भेज करके एक दर पे झुका करके सारे दरों से बचा लिया, एक दर पे झुकाया सारे दरों से बचा लिया। हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी आए, सकाफत आ गई, अल्लाह के नबी आए, इज्जत मिल गई, अल्लाह के नबी आए, हमें जीने का हौसला मिल गया, अल्लाह के नबी आए, चारों तरफ बहार ही बहार आ गई, अल्लाह के नबी आए, हमें तमाम हमें जिंदा रहने का हौसला मिल गया, अल्लाह के नबी आए, हमें मालूमात का ज़हीरा मिल गया। वो नहीं आए थे लोग गधे का कान पकड़ के घूम रहे थे, वो नहीं आए थे लोग भैंसों में सवार होकर घूम रहे थे, वो नहीं आए थे लोग बीमार बहनों बेटियों की इज्जत को लूट रहे थे, वो नहीं आए थे अमीर गरीबों की हड्डी चूस रहा था, वो नहीं आए थे रास्ते में जरा सी दौड़ के लिए था अगर ठोकर लग जाए तो 6-6 महीने लड़ाइयां होते थे, वो नहीं आए थे हथियार तेज करके एक दूसरे का मर्डर हो रहा था, वो नहीं आए थे कातिल पैदा डाइन पैदा हो रहे थे। समाज के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, अगर किसी की बच्ची बच भी जाती थी तो उन्हें मार के खत्म कर दिया, उन्हें बच भी जाती थी तो उसको बादशाह अपने घर में लेके आते थे और उसके साथ उसको रशबबाजी करके उसके इस्मत को तार-तार कर देते थे। हज़ार बच्चियां चीख रही थी, बूढ़े चीख रहे थे, नौजवान चीख रहे थे। उस दौर में अच्छे नफ्स जो दिमाग रखते थे वो लोग चीख रहे थे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहे थे, ए मेरे मौला बच्चियां कब तक जिंदा दफनाई जाएंगे, जवान बच्चों की इस्मत कब तक लूटी जाएगी, अरे माओ को कब तक बीवी बनाया जाएगा, गरीबों की हड्डी कब तक चूसी जाएगी। ऐसा कोई रहबर आजम भेज दे ताकि बिखरे हुए लोगों को एक ही प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दे, ऐसा कोई आदमी भेज दे जो जमाने के बहके हुए लोगों को राह रास्ते पर ला के खड़ा कर दे। हर रात रात की सहर की दुआएं कबूल हुई और रहमत खुदाबंदी को जोश आया। 23 अप्रैल सन 561 ईस्वी में 12 रबीउल नूर की सुबह आमिना की गोद में अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान कुरैश खानदान में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो आ गए, बच्चियों को जिंदगी मिल गई, वो आ गए, औरतों को इज्जत मिल गई, वो आ गए, माओ को इज्जत मिल गई, वो आ गए। अब औरतों को खिलौना नहीं समझा जाने लगा, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं एक बच्ची की परवरिश करो जन्नत में चले जाओगे, 2 बच्ची की परवरिश करो उनको शादी कर दो जन्नत में चले जाओगे, 3 बच्ची की परवरिश करो शादी करो जन्नत में चले जाएंगे। अमा यार हद तो ये कि एक सहाबिया खड़ी हुई, कहा या रसूलल्लाह ना मेरे पास 1 है ना 2 है ना 3 है। मेरे आका ने फरमाया दूसरी की बच्ची की हिफाजत कर ले और उसमें उसके ताउन और मदद कर ले, अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, वो आए तो इज्जत मिल गई, वो आए तो शफकत मिल गई, वो आए तो रहमत बन करके आए, वो आए तो लोगों को जीने का हौसला मिल गया, वो आए तो अखवत और मोहब्बत का दर्स दिया, वो आए तो लोगों को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। हजरात अब आप समझते चलिए, अल्लाह ने दिमाग देकर के कभी डिमांड नहीं किया, अल्लाह ने दिल देकर के कभी डिमांड नहीं किया, लेकिन जब दिया अल्लाह ने अपने हबीब को तो कहा मैंने एहसान किया, यह अल्लाह का एहसान है। और अल्लाह फरमाता है नियामत पाकर के शुक्रिया अदा करो, और फिर अल्लाह फरमाता है वज़कुरू नियामतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नियामत को याद करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नियामत पाकर के अल्लाह, नियामत पाकर के अल्लाह फरमाता है कि उसे याद करना फर्ज है, और अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, और अल्लाह की नियामत पाकर के खूब खूब चर्चा करो। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब नियामत पाओ तो खुशियां मनाओ। मैं समझ में नहीं पाया आखिर बात क्या है, कभी अल्लाह याद करने का हुक्म देता है, कभी चर्चा करने का हुक्म देता है, कभी खुशी मनाने का हुक्म देता है। याद अलग चीज है, बोलिए है कि नहीं है? याद जिक्र को कहते हैं, ये अलग चीज है, चर्चा अलग चीज है, खुशी अलग चीज है। 3 हिस्से में हम अपनी बात को डिवाइड करेंगे और अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे। हजरात हम यहां बैठे हुए हैं, बोलो नबी का चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मेरे नबी आए उनकी आमद का चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसमें जिक्र भी शामिल है और चर्चा भी शामिल है, ठीक है? जिक्र आदमी अपने घर में करे, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिक्र आदमी अपने घर में करे। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का जिक्र छिड़ गया। नहमदुहुल्लाहु तआला अला मन्ना बिका अलैना, अल्लाह के नबी बाहर आए और पूछा क्या कर रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान में भेजा और आपके जरिए से हमें हिदायत अता फरमाई। हदाना लिल ईमान, अल्लाह ने आपके जरिए से हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। वह मन्ना बिका अलैना, और आपके जरिए से हमारे ऊपर एहसान किया मौला ने, नहीं तो हम कहां कहां भटक रहे होते, किधर थिरक रहे होते, किधर मार खा रहे होते, कच्चे जोने गोश्त भून भून के खा रहे होते, कपड़े भी पहनने का शौर नहीं था, है कि नहीं? आज ही कौम पाई जा रही है। लोग कह रहे कोरोना वायरस ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। मैंने कहा क्यों किया साहब? बोले लोग जो है कीड़े मकोड़े भून के खा रहे थे, बीमारियां भून के खा रहे थे, गलत तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, और वहीं से बीमारी फैली, वबा फैली, और फैल करके लोगों को परेशान, और मौलिक बीमारी ने लोगों को जीना दोबार किया। बोलो किया कि नहीं किया? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम आप बैठे हुए और जिंदा सही सलामत है। हम इसी बात को लेकर अगर नबी का चर्चा दिन रात करें तब भी हक अदा नहीं होगा, है ना? हुकूमत ने पाबंदी लगाई बुरखे के ऊपर, और अल्लाह ने ऐसा फैसला फरमाया, ऐसी बीमारी नाज़िल कर दी कि तुम्हारी औरतें तो छोड़ो, तुम्हारे मर्दों को प्लास्टिक का बुर्का पहनना पड़ेगा। औरतों को तो छोड़ो, तुम्हारे मर्दों को पहनना पड़ेगा। अल्लाह जब फैसला करता है तो मर्दों को कपड़े का ही बुर्का नहीं, प्लास्टिक का बुर्का पहनने पर मजबूर कर देता है। हजरात इसलिए खुदा के कानून से कभी टकराव नहीं, सुन्नते रसूल से कभी टकराव नहीं। अल्लामा हजरत जुनैद आलम साहब किबला, लोग कह रहे थे हराम काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में ये कह रहा था मैं कि वो लोग मुस्तफा जान रहमत की शरीयत से टकर रहे थे, और जो शरीयत से टकरेगा वो बर्बाद हो जाएगा।
वो रेजा रेजा हो जाएगा। जो शरीयत से टकराएगा वो हमेशा के लिए घाटी में उतर जाएगा, फना हो जाएगा। वो खुद तो मिट सकता है लेकिन मुस्तफा की सुन्नत नहीं मिट सकती है। वो खुद बर्बाद हो सकता है लेकिन शरीयत कभी बर्बाद नहीं हो सकती है। वो आदमी खुद जो है दुनिया से उसकी लाश निकल सकती है लेकिन मुस्तफा जान रहमत का दीन कभी मिट नहीं सकता है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, तुम इसे जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। हजराते गिरामी जिक्र करते हम अपने घर में, नबी को पाकर के जिक्र कर रहे हैं। साहबा के दरमियान नबी आए, कहा क्या कर रहे हो? कहा आपके आमद का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम इस बात पर हल्फ लोगे? कहा हाँ हाँ हल्फ लेता हूं या रसूल अल्लाह, कसम खा के कहता हूं कि हम आपके ही आमद का जिक्र कर रहे हैं। आपके जरिए ने अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई, आपके जरिए से अल्लाह ने एहसान फरमाया, हम लोग सीधे राह पर आ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे यकीन है, मैं सिर्फ इसलिए हल्फ ले रहा हूँ कि मुझ मेरे पास आया थी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी इन्ना युबाही बिका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कसम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबा आपकी आमद का जिक्र कर रहे हैं, इस मामले को देख करके अल्लाह फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह फख्र फरमाता है नबी की आमद का जिक्र करो, खुद खतीब बन जाओ और बच्चों को सामईन बना दो। अपने बच्चों को बताओ नबी की गुफ्तार के बारे में, नबी के रफ्तार के बारे में, नबी के किरदार के बारे में, नबी का पहनना कैसा था, नबी का ओढ़ना कैसा था, नबी का चलना कैसा था। और घर घर में ये बात जारी कर दो। एहसान है बरेली के इमाम अहमद रजा का जिन्होंने बारे वफात के जुमले को हटा करके जश्न ईद मिलादुन नबी बना दिया। और आज दुनिया बारे वफात नहीं बोलती है तो ईद मिलादुन नबी बोलती है, जुलूस मोहम्मदी बोलती है। और यकीनन ये उलमाए किराम मेहनत करते रहेंगे और नबी के आमद का जिक्र बढ़ता जाएगा। कल चंद बच्चे निकलते थे, ये लुच्चे लफंदे मजाक उड़ा रहे थे, कसम मेरे मौला की उलमाए किराम की मेहनत है और बुजुर्गान दीन के रहमत का सदका है कि आज नबी के आमद के दिल पर अपने तो अपने गैर भी मिल करके नारे आमद लगाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए मर चल जाने वाले। हजरात गिरामी आप देखिए कि अल्लाह फरमाता है कि जिक्र पर अल्लाह फख्र फरमाता है। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी के सामने में हजरत अब्दुल्ला बिन रवा ने तारीफ की, हजरत जनाब अमरुल कैस ने तारीफ की, हजरत हसन बिन साबित ने तारीफ की। मेरे नबी ने किसी को मुझे जाफिजा सफात का सुनाया, किसी को इनाम से नवाज दिया, किसी को मेरे नबी ने बरकत की दुआ से नवाज दिया, किसी को अपनी चादर निकाल करके दे दिया। हजरात मेरे नबी अपनी आमद का जिक्र सुन रहे हैं, हजरत हलीमा के लिए अपनी चादर बिछा के रखी। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलिए, जोर से। हजरात गिराम में अल्लाह फख्र फरमाता है अब जिक्र हम अपने घर में करें तब भी जिक्र है, याद अपने बच्चों के दरमियान करें तब भी जिक्र है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने बच्चों के दरमियान मेरा जिक्र करे यकीनन उसको वो तो बख्शा जाएगा, रहती दुनिया तक जो ये अमल करेगा वो भी बख्शा जाएगा। इसलिए लोग बख्शिश चाहते हो कि नहीं चाहते हो, नबी की आमद का तज़किरा हर घर में करो और जब नबी की बात करोगे ना तो कसम मेरे मौला की
नहीं। कुछ लम्हा के लिए तुम्हारी बच्ची और बच्चा गुनहगार हो सकता है, लेकिन मुनाफिक कभी नहीं हो सकता है, दुश्मन रसूल कभी नहीं हो सकता है, गद्दार रसूल कभी पैदा नहीं हो सकता है। अगर होगा भी उनकी नस्ल में तो वफादार रसूल पैदा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत, सुभान। अब देखिए अब अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और रब की नियामत पाकर के खूब चर्चा करो। हर रात चर्चा घर में होगा क्या? बोलिए। चुपके चुपके से होगा क्या? बोलिए। नहीं होगा। हम अपनी मस्जिद में बैठ जाएं तो वो चर्चा कहलाएगा? बोलिए ना साहब। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आपका भी ताउन चाहिए मुझे। मैं आपके इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मुझे किस तरह से आपके दरमियान तकरीर करनी है, लेकिन यकीनन मजमा देख करके दिल बहुत खुश हो रहा है और बहुत दिल बाग बाग हो रहा है। और ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबके माओं की हिफाजत फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, इंतकाल कर गई हो तो खुल्दे बड़ी में जगह अता फरमाए। यकीनन ये माओं की नसीहत का सिला है। बेटा, नबी की महफिल में जाना तो सलीके से बैठ जाना, कायदे से बैठ जाना और बैठ करके उलमा की गुफ्तगू को समाअत करना। इसलिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। मजमा बहुत दूर तक है, यकीनन मुझे इजाजत होती तो मैं आपके बीच आकर के वहां खड़े होकर के अपना लहू और दिल कलेजा निकाल करके रख देता हजरात, लेकिन मैं यहाँ से बैठ करके आपको भी तक रहा हूँ और आपको शाबाशी दे रहा हूँ। अगर दुनिया पैसा दे करके इतने लोगों को बुलाते तो शायद ये लोग नहीं आते, लेकिन नबी की मोहब्बत में पूरी कौम जमा हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या अली, सुभान अल्लाह। ये गौस के दीवाने हैं, आके जमा हो गए हैं। ये गरीब नवाज के चाहने वाले हैं जो जमा हो गए हैं। आज दुनिया देखे और पता लगाए, ये दहशतगर्दों की जमात नहीं, ये अमन पसंदों की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। अमा यार, ये दीवाने ख्वाजा गरीब नवाज के, ये दीवाने बरेली के इमाम अहमद रजा के, ये चाहने वाले बंदा नवाज के, सूदराज के, तो जब दीवानों की इज्जत और आलम, इज्जत का इल्फत का ये आलम है तो आकाओं के इज्जत की इल्फत का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अमा जब हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला के दीवारों का ये हाल है तो बरेली के मुफ्ती आजम के दीवारों का हाल क्या होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं ये मौलवी साहब लोग इतनी खूबसूरत टोपी क्यों पहनते, ये इतना खूबसूरत लिबास क्यों पहनते, ये इतना लंबा जुब्बा क्यों पहनते? मैंने कहा साहब पहनने दो, पहनने दो। ये पहन के जब एयरपोर्ट पर सफर करें उनका खर्चा आप तय करो। मौलाना साहब आप ट्रेन से नहीं आओगे, प्लेन से सफर करोगे। यकीनन जब प्लेन से सफर करता हूँ ना, तन्हा सर पे टोपी बरकाती होती है, कुर्ता पैजामा होता है, वो लोग देखते रहते हैं, सोचते हैं वेरी वंडरफुल, कितने आश्चर्यजनक बात है। 3000 पे पाने वाला, 5000 पे पाने वाला, 10,000 पे पाने वाला एरोप्लेन से सफर कर रहा है, एरोप्लेन का सफर कर रहा है, बैग हाथ में है, अमेरिकन स्टोरी हाथ में है और एरोप्लेन से सफर कर रहा है और रात को लोग हैरत से देखते हैं। मैंने कहा लोगों से, लोगों इन उलमाए किराम का और साथ दो, इन्हें और आगे बढ़ाओ ताकि दुनिया देखे और कहे कि जब नागपुर के मुफ्ती मुजीब अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का ये आलम है तो बरेली के अहमद राजा की अजमत का आलम क्या होगा? दुनिया देखे और कहे कि बरेली वाले दादू शरिया की अजमत का ये आलम है तो फिर बगदाद के गौसे आलम की अजमत का क्या आलम होगा? जब दुनिया तुम्हें और हमें देखे तो कहे कि जब इनकी अजमत का ये आलम है तो नबियों के इमाम की अजमत का क्या आलम है? नारे तकबीर,
फैजान हुजूर अशरफुल फुक़हा उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत सरकार की आमद जिंदाबाद सरदार की आमद मरहबा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह लॉकडाउन में उर्स रज़वी हुआ कि नहीं? उर्स रज़वी के मौके पर प्लेन निकला यहाँ से बम्बई से, उसमें तमाम रज़वी हजरात बैठे हुए थे बरेली शरीफ तक, और जब वापसी में आने लगे ने साहब प्लेन में, तो हैरत की इंतहा ना रही कि सब टोपी वाले, सब रज़वी टोपी वाले बरेली से बम्बई आ रहे हैं। पूरा जहाज खचाखच रज़वियों से भरा हुआ है, आला हज़रत के चाहने वालों से, और प्लेन के अंदर नाते मुस्तफा पड़ी जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत अल्लाहु अकबर। और आला हजरत के दीवाने ऐसे कि खामोश तो थे ही नहीं, पढ़ भी रहे थे और धीरे धीरे तबर्रुक भी तकसीम कर रहे थे। मैंने ये होस्ट को कान में बुला के कहा, तुम चाय पिलाती हो तो 150 रुपया लेती हो, तुम बिस्किट खिलाती हो तो 100 रुपया लेती हो। ये देखो आला हजरत के शहदाई हैं, अपना तन भी कुर्बान कर रहे हैं, मन भी कुर्बान कर रहे हैं, और तबर्रुक तकसीम करके धन भी कुर्बान कर रहे हैं। फिर ऑफ सर्विस चालू है, ले जाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ले जाओ, बात भी रहे हैं। मैं यार ये सिर्फ वो कोरोना में वही नहीं, बल्कि ट्रेनों के बाहर भी इन टोपी वालों की भीड़ लगी हुई थी, जो पानी सप्लाई कर रहे थे, खाना सप्लाई कर रहे थे। जब मुस्तफा के दीवानों का ये आलम है, तो खुद मुस्तफा जाने रहमत की रहमत का आलम क्या? सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद मुस्तफा सरकार की आमद नारे रिसालत माशाअल्लाह सुभान। कोरोना में भी कभी मुसलमान घबराया नहीं, खजाना खोल करके रख दिया। कभी गरीबों को खाना, कभी गरीबों को कपड़ा, कभी गरीबों को पहनावा, और अपने तो अपने सबको बांटना शुरू कर दिया। एक शख्स है मदीना, एक औरत है मदीनतुल मुनव्वरा में, हज़रात गिरामी, वो यहूदिया मुसलमान औरत के पास आती है, मुअज्जिन ने मगरिब की अजान कह दी है, मुस्तफा जाने रहमत नमाज के लिए जा रहे हैं। वो औरत आई यहूदिया मुसलमान औरत से कहने लगी, बीबी वो बहन मुझे कपड़े की जरूरत है, अगर कपड़ा दे दो तो भला हो जाएगा। वो औरत अपने घर से निकाल रही थी, कहा ये वाला कपड़ा नहीं, आपके नबी के जिस्म का कपड़ा चाहिए। हज़रात की राह में मुसलमान औरत घबरा गई, आजान हो चुकी है, मुअज्जिन ने आजान पुकार दिया है, मेरे आका नमाज के लिए जा रहे होंगे, मैं कैसे मना हूँ। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा अपनी बेटे से, जा मेरे बेटे जा नबी से कह देना कि एक यहूदिया ने आपसे आपका जुब्बा शरीफ मांग लिया है, मेरे नबी नमाज के लिए जा रहे हैं। आपने जो ही वो जुमला सुना ना, बच्चे ने जब आकर के कहा ना, हम और तुम होते तो नकार देते, लेकिन मुस्तफा जाने मत ने नकारा नहीं, बोला ठीक है। अपने हुजरे में गए, वो जुब्बा निकाल करके आपने इनायत कर दी, दूसरा जुब्बा ज़ेबे तन करके नमाज पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। और जब जुब्बा ला करके उस यहूदिया को दिया ना, वो यहूदिया देख करके दंग रह गई। उसने कहा, मैंने अपनी किताबों में आखिरी समा नबी की सारी खूबियां पढ़ ली थी, ये खूबी का आजमाइश बाकी था, ये भी मैंने आज देख लिया कि आजान हो चुकी होगी, वो अपने रब को सजदा करने जा रहे होंगे। ऐसे वक्त में भी कोई उनसे मांगेगा तो वो मुस्तफा इनकार नहीं करेंगे, नमाज कुछ देर के लिए रोक करके अपना सामान इनायत करते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर। अबे नबी आप तनहा नमाज पढ़ने नहीं जाओगे, अब मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बात ये यहूदिया और है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से अपने बच्चे को नसीहत करके रखा है। कुछ ही दिन के बाद उसके घर में उसका शोहर का इंतकाल हो गया, उसका पति का देहांत हो गया। अब वो अपने घर में परेशान, खाना खत्म, पीना खत्म, कपड़ा खत्म, लत्ता खत्म। अब हालात ऐसे हैं कि उनको उसके घर की इज्जत ने कभी बाहर जाने नहीं दिया, इसलिए वो औरत कभी घर
से बाहर नहीं गई। हजरात बहुत परेशान हुई हो। यहूदिया थी ना साहब, उसने अपने बेटे को कहा जा चला जा अपने चचा के पास, जाकर के कुछ खाने का सामान लेकर के आ जा। वो बेटा दौड़ा दौड़ा गया, चचा के पास जाकर के कहा चचा मेरी माँ ने कहा है हमारे घर में खाना खत्म हो गया, पीना खत्म हो गया, सारो सामान खत्म हो गया, हमारे दिन भूखे पड़ गए, लाले पड़ गए हैं, हम भूख से निहाल हो चुके हैं, निराल हो चुके हैं, हमें खाने का इंतजाम कर दीजिए। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, तीसरे दिन चचा ने मना कर दिया नहीं नहीं ये खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। हजराते गिरामी अब वो औरत परेशान हो गई, कहा बेटा मोहल्ले के जमींदार के पास चला जा, मोहल्ले के चौधरी के पास चला जा, मोहल्ले के रईस के पास चला जा। वो बच्चा दौड़ता हुआ गया और रईस से कहा रईस मुझे खाना दे दीजिए, मुझे नाजो नखरे के सामान दे दीजिए, हमारे घर में फाका कशी हो रही है, हम लोग गरीब हैं, हमारे बाप का इंतकाल हो चुका है, हमारे बाप दुनिया से जा चुका है, हमें खाने का कुछ सामान इंतजाम कर दीजिए। उसने कहा मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो दौलत वाला होता है ना अक्सर उसका दिल तंग होता है, अक्सर वो दिल का कमजोर होता है, वो सोचता है 10+10 होगा तो 10+100 भी होगा, 10+200 भी होगा, 10+500 भी होगा, इसी में वो जुटा रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल वाला होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मस्जिद मिलाद में खर्च करने वाला होता है। रात में मुबारकबाद पेश करता हूँ, यह है यहाँ के नौजवान कमेटी अल मदीना ग्रुप के नौजवान शख्सों को जिन्होंने तामीर और तौसी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया और सब कुछ लुटा करके जलसे का इनेकाद किया है। हजरात गिरामी पैगाम लेते जाइए। वो जब मर गया, वो बच्चा जब गया ना रईस के पास, रईस ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बच्चा जाने लगा तो ये कहा मायूस मत हो, सुन सुन मैं एक पता बताता हूँ, वहां चला जा शायद तेरे लिए खाने का इंतजाम हो जाए। उसने कहा जाओ जाओ मुसलमानों के नबी के पास चला जाओ, जाओ जाओ मुसलमानों के आका के पास चले जाओ, यकीनन तुम्हें वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे, लेकिन जाना उनके यहाँ से ईमान लेकर के मत आना। वो बच्चा भागा भागा माँ के पास आया, क्योंकि माँ ने नबी के पास जाने से मना कर दिया था। वो बच्चा बोला चचा ने भी देने से इनकार कर दिया, रईस ने भी देने से इनकार कर दिया, अरे माँ क्या करूं, उन्होंने मुझे नबियों के मुसलमानों के नबी का एड्रेस दिया है, नबियों के इमाम का एड्रेस दिया है, अब वहां जाने के लिए बोल रहे हैं। माँ कहती है बेटा हालात इस तरह बेकाबू हो चुके हैं, भूख ने इस तरह से निढाल कर दिया है कि हमें जाना ही पड़ेगा। जाना उनसे पहले कह देना हमें आपका खाना चाहिए, आपका ईमान नहीं चाहिए, मैं मुसलमान होने नहीं आया हूँ, मैं आपका खाना लेके आया, लेने आया हूँ। ए मेरे बेटे मैंने सुना है कि जो उनकी बात सुन लेता है उनका ही होके रह जाता है। हाँ हाँ भाई, जो उनकी बात सुनता है उन्हीं का होके रह जाता है। बेटा जाना लेकिन ईमान लेकर के मत आना। अब ये बेटा दबे देवे पाँव नबी की बारगाह में गया। वो सोच रहा था ये मुस्तफा मेरा दाद पूछेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, मेरा हस्ब नसब पूछेंगे, ऐसा सोच सोच के जा रहा था। लेकिन जब रुखे जमाले मुस्तफा पे नजर पड़ी वो घबराहट खत्म हो गई, दौड़ता मोहब्बत से करीब चला गया, ऐसे जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। नबी की बारगाह में पहुंचा। नबी की बारगाह में जब पहुंचा मैं अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ परेशान है घर में, या रसूल अल्लाह खाने का इंतजाम कर दीजिए। आकाए कायनात ने दस्ते शफकत उसके सर पर रखा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मेरे आका फरमाते हैं मैं युआकिर कबीर ना वलम युआकिर सगीर ना फलैसा मिन्नी, जो हम में से बड़ों की ताज़ीम ना करें और छोटों पर शफकत ना करे वह हम में से नहीं है। हज़रात मेरे आका ने शफकत का हाथ रखा, बच्चे ने फौरन झटक दिया, कहा नहीं नहीं मेरे सर पर हाथ मत रखिए, मैं आपके पास खाना लेने आया हूँ, आपका ईमान लेने नहीं आया हूँ, मैं मुसलमान होने नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मैं किसी को जबरदस्ती कलमा भी नहीं पढ़ाता, तुम टेंशन मत लो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे नबी ने फौरन खाने का हुक्म दिया, कहा इसे खाना दिया जाए। वो खाना लेकर के दौड़ता मसरत में झूमता हुआ अपने घर के तरफ गया और खाना लेके जो ही अंदर दाखिल हुआ साहब घर से खाना से पूरा घर मुअत्तर हो गया, हवा मुअत्तर हो गई, फिजा मुअत्तर हो गया, क्योंकि नबी के दर का खाना था। आज जो खाना किसी के शिकम में चला जाए वो भला कैसे जहन्नम में जा सकता था। पूरा घर मुश्किल हो गया। यहीं रुक करके एक बात करूंगा, अबू जहल ने ऐलान किया था ये रुई लेकर के जाओ, ये कापूस लेकर के जाओ, ले जा करके बाहर आने वाले
खाने काबा का तवाफ करने वाले लोगों के कान में ठूस दो, क्योंकि जो मोहम्मद की बातें सुनता है ना उन्हीं का होकर के रह जाता है। इसलिए अपने तरफ से रुई तकसीम किया। क्या तकसीम किया बोलिए? कापूस तकसीम किया कि कान में ठोस लो और ठोस करके तवाफ करके वापस आओ। मुस्तफा जाने रहमत खाने काबा के सामने के दरवाजे पर खड़े हैं आज, और नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लोगों को भलाई की बात कर रहे हैं, लोगों से अच्छाई की बात कर रहे हैं। हजरात दुनिया है ना साहब, अच्छी बात करो तो लोगों को कड़वी लगती है, क्योंकि उसका दिल जो है ना वो खड्डा बन चुका है, दिल में जो है ना चुरकुट छुपा हुआ है, दिल अंधा हो चुका है। इसलिए दिल के अंधे को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। हम अमन की बात करें तो लोगों को बुरा लगता है, और लोग मारने की बात करें तो फिर भी केस मुकदमा नहीं होता है। हजरात किरामी, मुस्तफा जाने रहमत के की बातों को सुनने से रोका जा रहा है, लेकिन जब लोग वापस आ रहे हैं, नबी के रुखे जेबा पर नजर पड़ी तो लोगों ने कहा कि जो आदमी चेहरे से इतना खूबसूरत लगता है उनकी बातें कितनी खूबसूरत होगी। कानों से ठेठियां बाहर किया, नबी की गुफ्तगू को सुना, और जो ही सुना गुफ्तगू ने दिल पे घर किया और नबी का शैदाई हो गया। नबी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, हज़रत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब की नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान। ये यहूदिया के घर के मकान के पीछे खड़े होकर के नबी किसी दूसरे को नसीहत कर रहे हैं। यहूदिया जल भुन गई, आग भगोला हो गई, लेकिन इससे पहले तो नबी ने उसके घर से फायदा उठा लिया। जोर से बोलिए, जोर से। नबी ने घर से फायदा उठा लिया, और मेरे नबी जिसके छांव में आराम कर ले वो भला जहन्नम में कैसे चला जाए। वो जल भून करके फौरन घर की खिड़कियों को बंद किया, वेंटिलेटर को जो ही बंद किया ना तो आवाज और बढ़ गई। फिर उसके बाद उसने घर का दरवाजा बंद किया। जो वो दरवाजा बंद कर रही थी, अल्लाह ने तो उसके दिल के दरवाजे को खोल दिया। हम दरवाजा बंद करके सोच रही थी अब आवाज अंदर नहीं आएगी, लेकिन इतनी अंदर आई, इतने अंदर आई, वो बाहर निकली, कहा या रसूल अल्लाह अब हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरात गुफ्तगू और समेटने जा रहा हूँ। हजरात बुढ़िया जाने लगी ना, कपड़ा उठा करके, गठरी उठा करके वो कहने लगी मुझे छोड़ के जाओ बाहर, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ऐसा आया है जो इनकी बातें सुन लेता है, इन्हीं का हो जाता है। नबी ने उसको छोड़ भी दिया। समाज सेवा देखिए, सेवा करने के बाद जब लौटने लगे ना, बुढ़िया बोलने लगी बड़े हसीन हो, बड़े खूबसूरत हो, और बहुत सीधे साधे भी लगते हो, पैसा भी नहीं लेते, मेहनत पर उजरत भी नहीं देते, और नहीं तो आज की दुनिया कहाँ माफ करने वाली, कहाँ पैसे से निजात छुटकारा देने वाली। ए मेरे बेटे जा रहे हो तो जाना, लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारे मक्के में मोहम्मद नाम का शख्स पैदा हुआ है ना, उनकी बातों में कभी मत आना। मेरे नबी ने कहा ठीक है बोलो, और आगे उन्होंने कहा अच्छा जा रहे हो तो कम से कम अपना नाम तो बता दो, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरी गठरी उठाने वाला फला शख्स था। हज़रात नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बिहार, ए बुढ़िया, जिस मोहम्मद के नाम से खौफ खाकर तुम यहाँ भाग के चली आई हो, वो कोई और नहीं मैं हूँ। वो बुढ़िया बोली सच कहा था किसी ने, जो तुम्हारी बात सुन लेता है तुम्हारा होता है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। कूड़ा फेंकने वाली के घर के करीब गए, कहा क्या हाल है तुम्हारा? बुढ़िया मरने जा रही है, हालत से खराब है, कोई पूछने नहीं आया। जब मेरे मुस्तफा पूछने गए, बुढ़िया बोली मैं कचरा फेंकती रही, तुमने कुछ नहीं बोला, आज मैं बीमार हूँ तो कोई देखने आया नहीं आया, लेकिन आप देखने के लिए आए, अब आप तनहा नहीं रहेंगे, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। हज़रात गिरामी गुफ्तगू समेटने जा रहा हूँ। वो औरत जो खाना खाई ना, वो जिसके पेट में खाना चला गया, वो ईमान की दौलत से कैसे भला महरूम रह सकता था, क्योंकि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह विनायत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा का खाना गया था, नूर वाला खाना गया था, ईमान वाला खाना गया था, रहमत वाला खाना गया था। औरत ने चंद लुकमा खाया, पेट भर गया, उठी बोली, जिसने न जात पूछा, न कास्ट पूछा, न धर्म पूछा, न नाम पूछा, न नस्ब पूछा, चचा ने देने से इनकार किया, रईस ने देने से इनकार कर दिया, और वो नबी मुसलमानों का इमाम, मुसलमानों का पैगंबर हमें खाना दिया है, तो यकीनन वो झूठा नहीं, सच्चा नबी है। बेटा खाना बाद में खाएंगे, पहले चलो नबी
नबी के दामन से लिपट के कलमा पढ़ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा हजरत अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला। यही वजह है कोरोना में लोग खाना बांट रहे थे, यही वजह है दवाइयां तकसीम कर रहे थे, और ये ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर लोगों को पैगाम का दर्स, अमन और शांति का पैगाम दे रहे थे और बता रहे थे लोगों, कभी खाना खिला के गरीब की हिमायत करो, कभी पानी पिला करके हिमायत करो, कभी उनके नाज़ो नखरे उठा करके उनकी हिमायत करो। जो इस मजहब में आ जाता है वो सताया नहीं जाता है, उन्हें इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। हज़रात किरामी, मैं गुफ्तगू को जल्दी से समेट करके खत्म कर दूं। हज़रात किरामी, इसलिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नहीं। हमारा नबी जब देते हैं ना बहुत कुछ अता करते हुए नजर आते हैं, इसलिए इस देने का चर्चा होगा। अब चर्चे के लिए जलसा बुलाया जाएगा, लोग बुलाए जाएंगे, माइक लगाया जाएगा, उलमा को दावत दी जाएगी और उलमा किराम आकर के नबी की आमद का चर्चा करेंगे। जिक्र आप अपने घर में मस्जिद में करोगे, तन्हाई में करोगे, चर्चा आकर के मजमा में करो, जलसे में करो। अब ईद कैसे मनाएं? जी हजरत गिरामी, अब ईद कैसे मनाएं? अल्लाह के हजरत ईसा रूहुल्लाह ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह दस्तरखान अल्लाह दस्तरखान नाजिल कर दे ताकि वो दिन हमारे लिए ईद हो। तो नियामत उतरने वाले दिन को ईद कहा जाता है, सैयदुल अय्याम को ईद कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बोलो जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा आए वो ईद मिलादुन नबी नहीं तो और कौन सा दिन है? अब खुशी भी मनाने का हुक्म है, खुशी के लिए तहाइफ देने पड़ेंगे, फूल सजाने पड़ेंगे, घर सजाना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, झंडे लगा करके लोगों में चर्चा करना पड़ेगा, अपने भी जमा होंगे, बेगाने भी जमा होंगे। अमा ईद होती है तो मोहल्ले का आदमी, शहर का आदमी जमा होता है, लेकिन जब ईद मिलादुन नबी होता है तो पूरे इलाके के लोग जमा हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? जुलूस मोहम्मदी में जमा होते कि नहीं होते हैं? बोलो लोग कहते जुलूस कुरान में कहाँ है, जलसा कुरान में कहाँ है, बोलते चर्चा कुरान में कहाँ है? बता देना, ये आयतें सुना करके चर्चा मौजूद है। नहीं समझ में आए तो मौलाना जुल्करनैन साहब किबला कादिया मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनके पास आ जाएं। अब आइए, मैं जो कह रहा था ना, नबी आए, नबी की आमद से बाहर, ये जो पागल है साहब, ये जो मित्ता लोग कौन है ना चिल्ला रहे थे, एंकर लोग है कि नहीं, वो जो खास करके शर्मा नुपुर शर्मा, ये तो बेहया है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, समझ रहे हैं? ठीक है। और उसके साथ में एक और छोकरा था, वो बदनाम ज़माना कमीना, वो भी नबी के बारे में गुस्ताखी कर रहा था। इसे कुछ नहीं पता, ये लोग पढ़े लिखे नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। अमा यार, जिसने नबी की तारीफ की, नबी की नामुस पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर बन गए। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने नबी की आमद का जिक्र किया, गुफ्तगू किया, उनकी आज़मत पर अपना तन मन धन समर्पित कर दिया, वो हजरत उमर फारूक अदालत के सरदार बन गए। जिसने नबी की इज्जत और तारीफ और तौसीफ बयान की, वो उस्मान गनी शुजाअत सखावत के सरदार बन गए। हाँ, जिसने नबी के सम्मान और इज्जत की बात की, उनकी रिफात को बयान किया, वो खुद साहिब इज्जत हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम बन गए। हजरत जिसने अपने नबी की इज्जत और सम्मान के खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने खानदान वालों को कुर्बान कर दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, उसे जनाबे शहीद आदम इमाम हुसैन कहते हैं। हजरत जिसने पूरे जिंदगी अल्लाह के रसूल की आज़मत को बयान करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, दुनिया उन्हें नौमान बिन साबित इमाम आदम के नाम से याद करती है। जिसने नबी के तौर तरीके को अपनी जिंदगी में ढाल करके नबी के सारी तारीफ और तौसीफ में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर गौसे आदम के नाम से याद करती है। जिसने संजर छोड़ करके नबी की आज़मत का झंडा हिंदुस्तान में बुलंद किया, वो तनहा हिंदुस्तान का राजा, पूरी दुनिया का खाजा बन गया, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान ना बदलेगा, हाँ, अल्लाह के रसूल का फरमान ना बदलेगा, बदलेगा ज़माना लाख लेकिन कुरान ना बदलेगा। और हर दूसरे जगह के फतवे तो हमेशा बदलते हैं, एक शहर बरेली का फरमान ना बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद इश्क मोहब्बत आला हजरत तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हजरात गिरामी, जो नबी की तारीफ किया वो गरीब नवाज बन गए, जो नबी की तारीफ किया वो सैयदना सरकार आला हजरत बन गए, जो नबी की तारीफ में अपनी पूरी जिंदगी 56 साला किताबें तहरीर करते रहे, दुनिया को 13 से ज्यादा किताबें देते रहे, वो कलम के शहंशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सुन्नियों का इमाम बन गए। उनके नाम से मस्जिदें तामीर हुई, उनके नाम से खानकाहें तामीर हुई, उनके नाम से मदरसे तामीर हुए और उनके नाम से स्कूल भी तामीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हजरात गिरामी, नबी कौनैन की तारीफ करने वाला कोई मुफ्ती आजम बन गया, कोई नबी की तारीफ करने वाला अशरफुल फुकहा मुफ्ती मुजीब अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अशरफुल फुकहा जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाला हुजूर अख्तर रजा अजहरी मियां बन गए और ऐसे बने कि उनके जनाजे पर लाखों की भीड़ हो गई। दुनिया ने देख लिया कि अख्तर रजा की अजमत का जब ये आलम है तो अहमद रजा की इज्जत का आलम क्या होगा? बोलिए, जोर से बोलिए। हजरात गिरामी, ये लोग पागल है जो नबी की शान को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया, एक दो एंकर क्या जिसको जहां जाना है वो चला जाएगा, भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे पूरी दुनिया की एंकर जमा हो जाए फिर भी नबी की अजमत पर जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। ये आयत इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ के सुना दीजिए। नबी की अजमत का चर्चा कुरान करता है, खुदा खुद करता है, इसलिए सारे चर्चा करने वाले मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नबी की अजमत का चर्चा करने वाला बात ही करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल उनका जिक्र बाकी रहेगा। हत्ता कि खुदा को याद करने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन मुस्तफा को याद करने वाला खुदा रहेगा। हजरात गिरामी, बात यही खत्म भी नहीं होगी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया ना तो डॉक्टर रामकृष्ण राव बेंगलोर का प्रोफेसर उठ करके इसी कर्नाटक का जो मजहबन पंडित था, हिंदू और पंडित था, मशरफन वो प्रोफेसर था, प्रोफेसर, उसने कहा ही इज ए मॉडर्न अवार्ड, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खूबसूरत नमूना है मुस्तफा जान रहमान। उसने कहा द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ग्रीन इनटू द होल ट्रूथ ओनली ए ग्लांस एट कैनल के व्हाट ये ड्रामेटिक सक्सेशन पिक्चर्स ऑफ स्कैनर्स देयर आर द मोहम्मद, देयर आर प्रोफेट द मोहम्मद, देयर आर मोहम्मद द वेरियर, देयर आर मोहम्मद द वेरियर, देयर आर मोहम्मद द इमानिस्ट putter of amen, dear are Muhammad the protector of syllabus, dear are Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the reformer, all these magnificent role, all these department human activities, he is a alike a hero. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा सरकार की आमद, माशाअल्लाह। सुभान, उसको करना चाहिए था अपने गुरु की बात करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था अपने महाराज की बात करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हक वो है अल फज़्लु मा शहिदा बिहिल अदा, कि जो दुश्मन गवाही दे दे वही हक है, वही सच है, वही फजीलत वाली चीज है। अपने तो अपने साहब, हम नबी का कलमा पढ़ते इसलिए तारीफ करते हैं, जुनैद साहब किबला नबी का कलमा पढ़ते इसलिए नबी की तारीफ करते हैं, हजरत ज़ुल्क़रनैन नबी का कलमा पढ़ते इसलिए नबी की तारीफ करते हैं। लेकिन प्रोफेसर रामकृष्ण राव इसी बेंगलोर यूनिवर्सिटी का और मैसूर यूनिवर्सिटी का, उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा मुस्तफा जान रहमत की अजमत को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लामतना ही है उनकी आसमान, हम जितना चूचू उनके करीब होते हैं तो वो बुलंदी पर दिखाई देते हैं, उनकी
उनकी आजमत का कोई ठिकाना नहीं है। लामतना ही अल्लाह ने इज्जतें दी है, सम्मान दिया है, पर अल्लाह ने उनको आदरणीय बनाया है। वो कहते हैं उनकी हकीकत के तह में पहुंचना डिफिकल्ट है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रीप इनटू द होल ट्रूथ। कहते हैं उनकी सच्चाई के तह पर पहुंचना, हकीकत पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, बहुत आश्चर्यजनक है। हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन नबी की हकीकत का पता नहीं लगाया जा सकता है, अल्लाह ही जानता है। जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। हजरात वो कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उनकी आजमत का सिर्फ एक बाब खोलते हैं तो दूसरा बाब खुलता हुआ दिखाई देता है। एक चैप्टर पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर खुलता हुआ दिखाई देता है। एक फसल पढ़ते हैं दूसरी फसल खुलती हुई दिखाई देती है। एक किताब पढ़ते हैं तो दूसरी किताब सामने आ जाती है। जो करीब होते जाओ तो उनकी आजमत की इंतहा नहीं रहती है, बहुत बुलंद है। और फिर कहते हैं अल्लाह ने तन्हा एक साथ के अंदर इतनी सारी खूबियां कैसे रख दिया है। बच्चों के बगड़े हुए लोग, मारने काटने वाले लोग, दांत साहब माँ बहन की इज्जत लूटने वाले लोग, बच्चियों को मारने दफन करने वाले लोग, ऐसे लड़ाकू लोगों को कैसे नबी ने बदल दिया कलमा पढ़ा करके कि पूरी जमीन जादुई ताकत से भर गई। जिधर देखो नबी का शहरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। है कि नहीं? हाँ, तन्हा एक साथ है लेकिन मजहबी खिदमत देखो तो लाजवाब है, सामाजिक खिदमत देखो तो लाजवाब है। मजहब के काम करने पे आ जाए तो सिद्दीक को सदाकत का सरदार बना दे, मजहब का काम करने के लिए आ जाए तो बुढ़िया को कलमा पढ़ाते हुए नजर आए, मजहब का काम करते आ जाए तो परिंदों को सताने के लिए मना कर दे, मजहब का काम करने के लिए आ जाए तो जिसकी बोली पागलिन की बोली, कोई पागल औरत की बोली नहीं सुन रहा था, मेरे मुस्तफा खड़े होकर के उसकी बोली सुन रहे हैं। धूप पे खड़े होकर के लोगों ने कहा था या रसूलल्लाह आप उनके पास कैसे चले गए, वो तो पागल औरत है, दीवाना है। मेरे आका ने फरमाया तुम जानते नहीं जिसकी कोई नहीं सुनता है उसी की सुनने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है। बेशक है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले, और उनकी फरियादी भी वो सुनते हैं जो दुनिया में बेसदा वाले, है जो दुनिया में बेसदा वाले। और बात होती है जब शहादत की, और बात होती है जब शहादत की, याद आते हैं करबला वाले, याद आते हैं करबला वाले। हजरात मेरे नबी जब समाजी खिदमत करने के लिए उतर जाते हैं तो पुलिस महकमा कायम करते हुए दिखाई देते हैं, गरीबों को इंसाफ देते हुए नजर आते हैं। अरे बात जब हक देने की आई है, मुस्तफा जान रहमत आखिरी वक्त में अपने उस गुलाम के हाथ में कोड़ा देते हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी जब हमारी समाजी खिदमत, मजहबी खिदमत जिस डिपार्टमेंट में देखो, वो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था ना, ही both label the secularists and relativists। अगर उस आदमी को देखोगे तो वो धार्मिक लेवल पर भी तन्हा दिखाई देता है और सामाजिक लेवल पर भी तन्हा दिखाई देता है। कोई आया तो सिर्फ धर्म की खिदमत करने के लिए आया, कोई आया तो सिर्फ समाज की खिदमत करने के लिए आया, लेकिन तन्हा मुस्तफा जान रहमत की जात है जो बॉस लेवल पर काम करता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक खिदमत देखो तो लाजवाब, मजहबी खिदमत देखो तो लाजवाब। मजहबी खिदमत ऐसी कि एक सुन्नत पर भी अमल कर जाए तो जन्नती हो जाए, और समाजी खिदमत ये कि ऊंटों को भी आप खाना खिलाते, दाना दिलवाते, इंसाफ दिलवाते नजर आते हैं, हरनी को भी आप उनके
के ऊपर रहमत का दरिया बहाते हुए नजर आते हैं। समाजी खिदमत ये कि चूटियों को भी मारा नहीं जाए, समाजी खिदमत ये कि गाली किसी को ना दिया जाए। जो मेरे मुस्तफा गालियां देने की इजाजत नहीं देता, वो मुस्तफा भला गोलियां चलाने की इजाजत कैसे देंगे? हजरात गिरामी, वो कहता है प्रोफेसर कि तन्हा एक साथ है, लेकिन जिस तरफ देखो नबी लाजवाब नजर आते हैं। बचपना देखो तो बचपना लाजवाब, जवानी देखो तो जवानी लाजवाब, फैसला देखो तो फैसला लाजवाब। तशाजरतिल हयाउ फी फस्ल खत्तिन जुरत बैनहुम बिन्नहास मिन बाद असदी। हम लोग झगड़े में फंस गए थे एक मामले में। फलम्मा राइनल अमर क़द जद्ददतहु, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने दरपेश हो गई और वो खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता था कि तीर तलवार संभाले बगैर अब कौम को फैसला नहीं होगा कौम के दरमियान में। वो कहते हैं, फिर किसी ने कहा कि रदीना वकुल्लल अदलु अव्वलुत ताबिईन, जो आदमी सबसे पहले यहाँ आएगा वही इंसाफ करेगा, वही हाकिम हकम होगा। हाँ, फिर हमने क्या देखा सुबह सुबह, बतहा की वादी से फफा जाना अदल अमीन मोहम्मद रदीना वकुल्लना फकुल्लना रदीना बिल अमीन मोहम्मद। सब ने कहा ये अमीन दयालु सादिक आदमी मोहम्मद के साथ हम खुश हैं, ये जो फैसला फरमा देंगे हम मान लेंगे। मेरे नबी ने चादर फैला दी, तमाम कबीले वालों से कहा और सब लोग एक एक कोना सरदार को बुलाओ, चादर पकड़ा दो कोना। नबी ने हजरे अस्वद को खाने काबा में नस्ब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, नारे रिसालत। वो कहते हैं तन्हा ये साथ है। कितना अच्छा खूबसूरत फैसला फरमाते हैं। उस वक्त के शोरा ने किताब लिख डाली थी नबी की इसी फैसले पर, इसी फैसले पर शेरों से भरा हुआ भरी हुई दुनिया, फसी और बलीग दुनिया थी। ऐसे पढ़े पढ़े उस वक्त के शायर लोग थे, किताबें लिख डाली। और फिर अभी तो नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, सब लोग उनके कदमों में झुकते नजर आते हैं। और फिर कहते हैं वो प्रोफेसर कहता है, एक आदमी तन्हा पैगंबर भी है, एक आदमी तन्हा लोगों का रिफॉर्मर भी है, संवारने वाला भी है, तन्हा वो सच्चा आदमी भी है, तन्हा वो गुलामों का रक्षक है, महिलाओं को सम्मान देने वाले का नाम मोहम्मद है। जिस डिपार्टमेंट में देखो वो एकताए नजर आते हैं, तन्हा नजर आते हैं। अगर कोई इस दुनिया में हीरो है तो सुपर हीरो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, बेशक। तन्हा वो लाजवाब आदमी है ही नहीं हजरात गिरामी। और आगे मेरी बात खत्म होने के लिए जा रही है। मुस्तफा को अल्लाह ने खूबियों से मुरस्सा बना करके भेजा था, मंबा चश्मा मस्तर बना करके भेजा था। वो खुद भी खूबियों वाले थे और जिसे जिसे आपने नवाज दिया वो भी खूबियों वाला हो गया। अरे जिसने देख के कलमा पढ़ा वो भी खूबियों वाला हो गया, जो बगैर देखे कलमा पढ़ा वो भी खूबी वाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे कल्याण के सरजमीन में मदरसे के बच्चों को पकड़ लिया था पुलिस वालों ने। बोला इन बच्चों को ले जाके क्या करोगे? मैंने कहा इन बच्चों को ले जाकर के इंसान बनाऊंगा। कहा कॉलेज में इंसान नहीं बनते, कहा स्कूल में इंसान नहीं बनते। मैं हाँ बनते तो हैं, लेकिन वो डाइन होते हैं, कातिल होते हैं। डॉक्टर बनने के बाद लोगों के पैसों को लूटते हैं, वकील बनने के बाद झूठ बोलते हैं, शराब पी करके गलियों में नालियों में पड़े रहते हैं और पैसा ज्यादा हो जाए तो तवायफ खानों को आबाद करते हैं, शराब औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, पीए बना के इज्जत लूटते हैं, सीए बना के इज्जत लेते हैं, अपना पर्सनल असिस्टेंट बना करके इज्जत लूटते हैं। लेकिन कसम वहदहु ला शरीक की, ये उलमाए किराम जब पढ़ करके आएंगे तो मस्जिद बनाते हुए नजर आएंगे, मदरसा बनाते हुए नजर आएंगे, भवन देते हुए नजर आएंगे। अबे कभी काम आए या ना आए तुम्हारे, लेकिन कोरोना काल आएगा तो खटिया बिछाते तो नजर आओगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जी 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 हजरत, मैंने मुझसे कहा ये तुम देखते हो ना तवायफ खानों में जाते हुए, बोलो दाढ़ी वालों को तुमने कितना देखा, टोपी वालों को तुमने कितना देखा, शराब की नालियों पी करके नालियों में गिरने वाला, पागलों की तरह घूमने वाला, उनने कितना टोपी दाढ़ी वाले को देखा है? वो कहते नहीं मौलवी साहब हमने तो नहीं देखा। मैंने कहा बात, ये जो यूरिया घोटाला में पकड़ा गया ये मौलवी दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, ये जो चारा घोटाला में पकड़ा गया मौलवी दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, ये जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुकूमत के 100-300 करोड़ के रेलवे की संपत्ति को जला दिया ये कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था,
ये तुम्हारे ही स्कूल का पढ़ा होगा, तुम्हारी कॉलेज का पढ़ा होगा। एक पुलिस वाला बोलता है ये को क्या करोगे? मैंने कहा इंसान बनाऊंगा। तुम बदमाश को पकड़ते हो, उसको जेल में डालते हो, मारते हो, वो निकलने के बाद बॉस बन जाता है। कसम मेरे मौला की, तुम किसी दिन उसको 6 महीने के लिए मदरसे में लाके रख देना, हजरत जुनैद रज़ा के पास लाके रख देना, हजरत जुल्करनैन के पास लाके रख देना। तुम्हारा निकलने के बाद और बात बदमाश का बाप बन जाता है, लेकिन हमारा वाला निकलेगा तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी तनहा नहीं निकलेंगे, उनके साथ जितने निकलेंगे सब आलिम व हाफिज व कारी कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अंदर भी तबलीग बाहर भी तबलीग। हमारा मुजाहिद मिल्लत अंदर जेल में जाएगा तो तन्हा अब नहीं निकलेगा, अपने साथ नबी का दीवानों का हुजूम लेकर के निकलेगा। हम मस्जिद में भेजोगे, मदरसा में भेजोगे तो चोर बदमाश डाकू नहीं होगा, होगा तो दीन का सिपाही होगा और कौम का मुअतबर आदमी होगा, कौम का वैल्यूटियर आदमी होगा, विली भर आदमी होगा। इसलिए कौम को अच्छे लोगों की जरूरत है, सच्चे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की जरूरत है। यहाँ साहब एयर होस्टेस देखो तो ईमानदार चाहिए, शॉपकीपर देखो तो ईमानदार चाहिए। तो ईमानदार किसी और कारखाने से पैदा नहीं होते, होते तो मदरसे से पैदा होते, मस्जिद कादरिया से पैदा होते, दारुल अस्कार हक मालनपुर से पैदा होते, अल्लामा जुनैद रज़ा के मदरसे से पैदा होते। इसलिए दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, सच्चे लोगों की जरूरत है। मदरसे भी कायम करो और मस्जिद भी कायम करते रहो। ये मस्जिद कादरिया आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मस्जिद को बनाया है, तामीर किया है साहब, बहुत खूबसूरत है कि नहीं? हाँ, मस्जिद बड़ी मेहनत से आपने बना ली है। अब आप यहां से वादा कीजिए कि हम मस्जिद को आबाद करेंगे, करेंगे कि नहीं? बोलिए सब लोग हाथ उठा के बोलिए, एक ही आदमी नमाज पढ़ेगा। इतनी मेहनत करके कलेजा फाड़ के एक ही आदमी बोल रहा है। बोलिए इंशाल्लाह सब लोग नमाजी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अपनी नस्लों को भी नमाजी बनाएंगे। मेरे नबी आए तो औरतों को भी सम्मान दी। दूसरे लोग औरतों की इज्जत लूटने की बात करते हैं, औरतों की इज्जत लूटने की बात करते हैं। मैंने कहा था अभी सिद्दीपेट के जलसे में कि मेरा नबी तन्हा है जो लोगों को इज्जत लूटने की बात नहीं औरतों की बल्कि सम्मान देने की बात करता है। हाँ, दुनिया ने देखा नहीं, एक तवाइफ आई थी एक वली के मोहल्ले में। वो वली के मोहल्ले में जब आई तवाइफ, और तवाइफ का बाजार बहुत गर्म। एक नौजवान छोकरे लोग बोलते हैं हम लोग अभी से मस्जिद क्या जाएंगे, बुढ़ापा आने दो तब मस्जिद में जाएंगे। अबे जब औरत या लात मार के भेगी भगाएगी तब जाएगा मस्जिद में, बहू जवा के चिल्लाएगी तब जाएगा मस्जिद में, सुलसुल बॉल की बीमारी हो जाएगी तब जाएगा मस्जिद में, जब पेशाब टपकने की बीमारी होगी तब जाएगा मस्जिद में। जवानी में इबादत कर ले। किसकी जवानी देख करके तू घमंड कर रहा है? अरे तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं कि अय्याशियों के अड्डे की कहानी बने, बल्कि तुम्हारी जवानी अल्लाह ने इसलिए दी ताकि अजमत दीन की निशानियां बन जाएं। तुम्हारी जिंदगी मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी से लिपटी हुई है, तुम्हारी जिंदगी तारिक बिन ज़ियाद की जिंदगी से लिपटी हुई है, तुम्हारी जिंदगी हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी से लिपटी हुई है, तुम्हारी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी और जवानी से लिपटी हुई है। इसलिए अपनी जवानियों को अड्डों में जाकर के बर्बाद मत करो, गुनाहों में जाकर के मिसमार मत करो, बल्कि ये सोचो हम अच्छे हो जाएं तो जमाना अच्छा हो जाएगा। हजरात वो वली के मोहल्ले में वो औरत आई तवाहिब, नौजवानों का बाजार गर्म हो गया। हजरात गिरामी अल्लाह के वली के पास शिकायत पहुंची, कहा आपके मोहल्ले में गांव में वो औरत आई है और गुनाह का बाजार गर्म है। अल्लाह के वली ने मुसल्ला लिया, लोटा लिया और लेके चले गए उसके घर के करीब सामने में अपना मुसल्ला बिछा गया। अब जवानों का आनापन, हाँ कितने भी बेशरम हो जाएंगे जवान, लेकिन दाढ़ी टोपी वाले को देख करके सलाम तो कर ही लेते हैं, इज्जत कर ही लेते हैं। अब लोगों का जब जाना बंद हो गया ना, उसने अपने नौकरानी को भेजा कि जा करके देखो कि आखिर क्यों नहीं
ही कोई आ रहा है। उसने देखा कि एक सफेद रीश आदमी मुसल्ला बिछाए सामने बैठा है, उससे शर्म खा के नौजवान भाग रहे हैं। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि बाबा पैसा ले लो, कहीं और चले जाओ। हजरत ने कहा मैं पैसा लेने नहीं, पैसा देने आया हूँ। बोले क्या बात करते? बोले हाँ। कहा ठीक है, उसको बुलाया जाए। जब अंदर आप तशरीफ ले गए ना, कहा बोलो आज रात की कीमत क्या है? कहा फलाना दिरहम कीमत है। हजरत ने कहा ये कीमत दे लो। फिर उसके बाद कहा जो पैसा देता है तुम उसकी हो जाती हो। कहा हाँ हाँ पापा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसकी हो जाती हो। हजरत ने फरमाया ठीक है, अब तुम मेरी हो गई, मेरी बात मानोगी ना? कहा हाँ हाँ। पैसा देने के बाद हजरत ने कहा बोलो ये कपड़ा ले लो, ये अपना कपड़ा ले जाओ और मेरा कपड़ा ले जाओ, नहा करके साफ सुथरा होकर के आओ, कपड़े पहन करके आओ। उस औरत की हैरत की इंतहा ना रही। उसने कहा दुनिया आती है तो मेरे कपड़े उतारने की बात करती है, दुनिया पैसा लेके आते हैं तो कपड़े उतारने की बात कहते हैं। हजरत फायदुल गुस्तामी कहते हैं ए औरत तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। हम यहाँ कपड़े उतारने की बात नहीं करते, हम कपड़े उठाने की बात करते हैं। हम हिजाब उतारने की बात नहीं करते, माँ और बहनों को हिजाब पहनाने की बात करते हैं। अगर है मेरे माँ बहने दुनिया तुम्हें हिजाब उतारने की बात करे तो खामोश एतराज ये है कि दुनिया पूरी कोशिश कर ले हिजाब उतारने पर। आप पूरी कोशिश करो इस बात करके अब हम आज के बाद अपने घर में भी दुपट्टा ओढ़ेंगे, बाहर भी दुपट्टा ओढ़ेंगे। एक और देते तो दो दो तीन तीन ओढ़ेंगे। बोलो ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे? औरत ने कहा सबने कपड़े उतारने की बात की, लेकिन आप आए तो कपड़े पहनाने की बात कर रहे हैं। यकीनन जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो लोगों को रुस्वा नहीं करता, लोगों को इज्जत देने की बात करता है। रात ये मस्जिद कादिरिया आपके मोहल्ले में बनी है, आपका क्या ख्याल है? उसको तरक्की मिलनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि वसूल हो जाता तो भला हो जाता, लेकिन फिर भी हजरत का हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। हजरत ने कहा कि आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं तहे दिल से। हमारी अराकीन कादिरिया मस्जिद और उलमा अहले सुन्नत सब लोग आपको मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपने इतनी शानदार जानदार मस्जिद तामीर की है। अब आपके पास कभी भी मस्जिद का मोहसिल चंदा करने के लिए जाए तो अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दीजिए। करेंगे कि नहीं? बोले इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के लिए हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। मस्जिद को आबाद रखने के लिए पेशानी से अपने सजदे को, पेशानी को सजाएंगे सजदों से और मस्जिद के रौनक में इजाफा करेंगे, दामे दिल में सुखाने हिस्सा लेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला जलसा होने के लिए